ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट Amazon, राइट। सो जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी गाइस, प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज उस वीडियो में यार मैंने ये बताया था दैट हाउ आई अप्लाइड एट Amazon ऑफ कैंपस, हाउ आई गॉट द टेस्ट लिंक एंड हाउ आई व्हाट वाज द कोडिंग राउंड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें उसमें शेयर करी थी, व्हाट दे डूएबल, नॉट डूएबल, व्हाट वर देयर डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, द टॉपिक दे आर मोर कंसर्न्ड ऑन। सो वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बात करी थी एंड मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था गाइस दैट इफ आई विल गेट अ चांस टू जस्ट गिव एन इंटरव्यू एट Amazon, I'll definitely make a video on that. So here we are guys, I've cleared the coding round. I'm making a video on my interview experience at Amazon which has taken place like couple of days back. सो आज की वीडियो में यार मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो प्रोसेस पर्टिकुलरली हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मेरा मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ। द कोडिंग क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, ठीक है, मैं हर एक कोडिंग क्वेश्चन को शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो दिस वीडियो विल गोइंग टू ब्लो अप योर माइंड बिकॉज आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो गाइज, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट क्रायो इज गाइज, क्रायो इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम अपनी डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, बिकॉज देयर द कोर्सेज दैट दे आर मेकिंग इज आउटस्टैंडिंग। Cryo.io is basically comes in the top 50 startups, right? And what do you learn over here is full stack web development or backend hands-on. Hands-on, what do you mean by hands-on is like the projects that you are going to make is basically the industrial level projects, right? So वो projects बहुत basic नहीं होने वाले, वो projects काफ़ी अच्छे होने वाले हैं and they believe in project based development, right? So this is their specialty. And if you look out there, the students they are getting placed at. So Grab is there, top companies you look at. So these students are getting placed over there. So I'll you can explore their courses, you can book their free trials, you can book your free trials and look at the companies that are getting placed guys: Walmart, Meesho, Grab, Unifies, then some amazing companies are there, like, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज में their students are getting placed. Now what kind of projects you are going to make from their courses is, let's just go on the project site and let's just explore some of the projects, let's say related to React. Okay, and if you click on the React, then you can see that how amazing projects they are going to help you to make, like Amazon clone using React, online code editor, then you have resume builder web application, 450 DSA tracker, then markdown editor, Slack clone React using React, rat and amaze problem. Okay, so these are some of the advanced React project that you will going to make throughout the course, right? So this is what Cryo is. I'll definitely recommend you guys to come over their website, explore their courses, and if you are happy to buy their course, you can click on the link given in the description. You will get 10-15% extra off, right? And you can also avail their Diwali offer that is for the limited time. And you can also see that here's the Diwali offer that light up your profile. They have also mentioned it over here, and light up your profile this Diwali. So you can get 30,000 scholarship as well for the limited time offer. So you can avail this offer as well until it's chala jayegi, tab tak you can explore this. Now moving on guys, moving on to the actual part of the video, coming to the main part of the video is माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट Amazon. एंड गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ दैट हुआ क्या क्या था, राइट? तो जिसने भी अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कोडिंग राउंड के बारे में बताया था, डू वॉच इट गाइस, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करा था, हाउ आई गॉट द टेस्ट लिंक, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है. नाउ गाइस, वंस आई हैव क्लियर्ड माय कोडिंग राउंड, ठीक है, मैंने कोडिंग राउंड क्लियर किया, देन आई गॉट अ मेल फ्रॉम Amazon. This is the mail that I got from them guys, that you have cleared your interview, you have cleared your coding round, and they have scheduled my video interview, which took place at 24th of October itself, right? And this is their own platform, and the meeting held on their own platform, right? So this was basically the mail that I got from Amazon after clearing my coding round. So this was the first step I had to take place. I have to attend this video interview round. So what happened at this interview guys, first of all,
Of the interviewer two of the interviewer joined the session. And guys, initially they have asked me a couple of questions like, are you nervous, something like that. So उन्होंने मेरे को क्या करा था, दे ट्राई टू कंफर्ट मी, ठीक है, मतलब कंफर्ट लेवल पे लाने की कोशिश करी थी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे, हाउ योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से थोड़ी सी चिल आउट करके बात करी. एंड उसके बाद गाइज, उसके बाद उन्होंने मेरे से डीएसएल वगैरह स्टार्ट करा, ठीक है, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट करा. तो आउट ऑफ देम टोटल उन्होंने यार मेरे से 4 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे. तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा चारों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँ तुमसे, द डिफिकल्टी लेवल, ईच एंड एवरीथिंग. तो यार जो फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट वाज पर्टिकुलरली बेस्ड अपॉन द एरेज, ठीक है, नॉर्मल एरेज का क्वेश्चन था वो. एंड मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बिकॉज एरेज के क्वेश्चन भी ईजी नहीं होते. तो थोड़ा सा क्वेश्चंस बताने की कोशिश करता हूँ. द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू एरे, एंड एक पर्टिकुलर एरे था, एंड उसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट 5 इंटीजर्स बताने थे. बट वो उस तरीके से बताने थे जो उनका ऑर्डर है ओरिजिनल एरे में वो सेम रहे, ठीक है. एंड उसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, वो नेव अप्रोच हो जाएगा, बेसिक अप्रोच हो जाएगा. दैट वाज यू कैन नॉट यूज एन एक्स्ट्रा स्पेस ओवर देयर. तो ये एक क्वेश्चन था विच आई वॉज एबल टू डू, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कर दिया था, आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस. देन गाइज, उन्होंने मेरे से थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा, दैट माइंड डू यू नो कंप्यूटर नेटवर्क्स, डू यू नो आईपी एड्रेसेस. तो थोड़ा बहुत आई हैड एन आइडिया अराउंड इट, बिकॉज मैंने सेमेस्टर एग्जाम्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क, बट स्पेशली मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ा था, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा था, डीबीएमएस पढ़ रखा था, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स पे कभी इतना फोकस्ड होके नहीं पढ़ा, ठीक है. तो उन्होंने मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, सम ऑफ देम आई वाज एबल टू give answers, some of them I was not, but he was all around happy with me. Now moving on, he asked me second question based upon the string, ठीक है, string का क्वेश्चन था वो, एंड आईपी एड्रेस का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है. तो वो वाला क्वेश्चन नहीं जो हम सबने लीड कोड पे कर रखा है आईपी एड्रेस का, दैट वाज नॉट द सेम क्वेश्चन. डिफरेंट था. डिफरेंट क्या था मैं बताता हूँ तुम्हें. जैसे आईपी एड्रेस की एक रेंज बताई थी उन्होंने मेरे को कि इट कैन इट कैन बी लेस देन 255, अ पर्टिकुलर नंबर दैट इज 111.222.333, ऐसे करके एक आईपी एड्रेस बनता है. तो पर्टिकुलरली जो नंबर है 111, दैट हैज़ टू बी लेस देन 256. सो ऐसे कितने आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से बन सकते हैं. तो वो सारे मुझे प्रिंट करने थे, ठीक है, प्रिंट या रिटर्न जो भी तुम कर सकते हो एरे लिस्ट में, या फिर रिटर्न कर सकते हो या फिर प्रिंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ तुम्हें करने थे, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आई वॉज नॉट able to code up to the mark, but I was able to tell him the approach, the complexity, and obviously guys the complexity तुम्हें पता होनी चाहिए हर एक चीज़ की, ठीक है, complexity पता होनी चाहिए, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक चीज़ की बिग हो, वो सब चीज़ें तुम्हें अप टू द मार्क होनी चाहिए, ठीक है. बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मेरे से डायरेक्टली नहीं पूछ करवाए कोड, बट उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में मुझसे पूछे थे, जैसे डीएफएस, बीएफएस, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, व्हाई डू वी यूज क्यू इन दैट. तो वो सारी बेसिक क्वेश्चंस थे, बट एक कंसेप्ट होता है जो तुम्हें क्लियर होना चाहिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव ऑन करता हूँ. दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन गाइज एक हमारा लिंक नहीं, उन्होंने उससे पहले मुझसे पूछा कि मयंक विच डेटा स्ट्रक्चर्स यू आर कॉन्फिडेंट इन, ठीक है. तो मैंने उन्हें बोला था यार लिंक्ड लिस्ट एंड बाइनरी, लाइक बाइनरी ट्रीज, ठीक है. तो मैंने उन्हें ये दोनों टॉपिक बोले थे. तो उन्होंने मुझसे लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन पूछा था, एंड लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था यार कि तुम्हें जो नोड्स हैं वो ऑल्टरनेट रोज को रिवर्स करनी है, ठीक है. मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 2 1 पहले आ जाएगा, 4 3 बाद में उसके पहले आ जाएगा, एंड देन 5, ठीक है. तो तुम्हें ऑल्टरनेट नोड्स को रिवर्स करना था. तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, नेम्ड प्रॉब्लम था, मैंने कर रखा था. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम कोड कर दो इसको. सो कोड इसका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज तुम्हें एक स्टैटिक नोड्स रखनी होती हैं दो, फिर एक लेंथ का फंक्शन बनाना पड़ता है. तो थोड़ा सा लेंदी कोड है इसका, बट मेरे को ये 10-15 मिनट मेरे को इसको कोड करने में लग गए थे, ठीक है, बिकॉज 3-4 फंक्शन भी बनाने थे एंड वो सब चीज़ें. देन उन्होंने यार उसको मेरे से कॉम्प्लेक्सिटी पूछी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीज़ें. देन यार मेरे को लगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा विच वाज अराउंड डीपी का क्वेश्चन था वो, ठीक है. एंड लाइक मतलब काफ़ी सही क्वेश्चन था. मेरे को भी एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है वो, बट अल्टीमेटली दैट क्वेश्चन आई वाज नॉट एबल टू डू. लाइक मेरे को उसका कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है, कुछ भी इन सेंस आई वाज एबल टू टेल द नेव अप्रोच विच इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच, आई वाज एबल टू डू दैट. बट वो कहते हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, ही शुड नो द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. तो ऑप्टिमाइज तक मैं नहीं पहुंच पाया था उस क्वेश्चन में. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन
two I was able to do completely, but one, that was the string question, I was not able to up to the mark. And वो जो last वाला DP का question था, that only I have told the naive approach, order of n square वाली, बाकी उसके अलावा I was not able to solve it, right? So this was my overall experience at Amazon, guys. So the difficulty अगर मैं बोलूँ तो questions were easy, medium and difficult, तीनों level के questions थे, ठीक है, interview में. एंड अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक गाइस, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मेरे को. एंड इफ आई क्लियर दिस राउंड, आई विल डेफिनेटली हैव एन इंटरव्यू अराउंड SDET प्रोफाइल, टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए था ये, ठीक है. तो SDET, तो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए अगर मेरे को एक और मतलब अगर क्लियर करना है तो हैव टू गिव एन अनदर इंटरव्यू, जिसका अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया. If I get a mail, I'll definitely make a video on that as well. So this was the overall experience, guys, and I hope you guys enjoyed the video. You got to know that what kind of questions Amazon asks. And if you think that you have got to know something new, something helpful, then do like the video, guys, do appreciate the video, do comment it out, do like the video, do subscribe to the channel, and do subscribe to the channel for more exciting videos. And obviously I'm making this playlist, making videos on another other companies as well, like EPAM and Infosys, Cognizant, ZS Associates, and other companies as well, so you can watch out that video as well. So till then, happy Diwali, guys. Thanks for watching the video. So bye bye.